Pharma for the unrestricted education grant. Today's session is diagnosis and management of GERD in journal practice, and our expert for today is Professor Shahid Sarwar. Before I introduce to our expert for today's session, we have to go through some standard announcements. We are part of a global movement called Project ECHO based in USA with an objective to disseminate knowledge and best practices. We do protect patient privacy, so none of the information used in this session will identify any individual or patient. For maintaining discipline, you all are muted, but we do encourage participation. So you can unmute yourself for questions or use the raised hand option and chat box. By participating, you have given the consent for recording, and the recorded session will be available on our YouTube channel. Link will be shared by Haris in the chat box. For the convenience of spokes, the session is bilingual. Please speak in Urdu or English, whatever language you are comfortable in. Our expert for today, Professor Shahid Sarwar, has done double fellowship in medicine and gastroenterology from College of Physicians and Surgeons, Pakistan. He has also accomplished Masters in Medical Education and is a Fellow of Royal College of Physicians, Edinburgh. He has served as Assistant Professor in KEMU from 2007 to 2012, and then Associate Professor in KEMU, Gujranwala Medical College and Service Institute of Medical Sciences from 2012 to 2020. Presently, he is working as Professor of Medicine and Gastroenterology in AIMC. He is also Head of Gastroenterology Department in Jinnah Hospital. I will now hand over to Dr. Asad Ali Chaudhry, our Director, for some more insight. Dr. Asad Ali. Assalamu alaikum. Thank you very much, Kiran. I'm truly delighted and excited on launch of another ECHO program in collaboration with GETS Pharma. And this will be digestive disease ECHO. ECHO के बारे में हम आपको बताते रहेंगे और आप सुनते भी रहेंगे ECHO के बारे में, लेकिन आइडिया ये है कि हम नॉलेज को और स्पेशली प्राइमरी केयर फिजिशियन लेवल पे मैनेजमेंट इश्यूज के ऊपर बात करें और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी होगा। हमें आपके पास कोई भी डिफिकल्ट केसेस हैं रिलेटेड टू द प्रेजेंटेशन वो आप शेयर करें। देयर विल बी अ सिस्टम थ्रू गेट्स रिप्रेजेंटेटिव और हमारा जो कोऑर्डिनेटर है उजैर, जिनका नंबर भी इन पे शेयर होता रहा है, वो आपको मिल जाएगा। लेकिन गेट्स कैन फॉरवर्ड योर क्वेश्चंस और हमारा आइडिया ये है कि हम कॉमन जीआई डिसऑर्डर्स को कवर करें इन मल्टीपल सेशन, जिसमें ये GERD है, डिस्पेप्सिया, कॉन्स्टिपेशन और सिंपल एब्डोमिनल पेन और ये सब चीजें। तो मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि we'll keep talking about this thing and I'm extremely grateful to Dr. Shahid Sarwar. He's a good friend and a big supporter of cause of ECHO as well as a keen teacher. So Shahid, over to you. You start your presentation and then we will keep moving forward. Ji Shahid. Thank you very much, Dr. Asad. I hope you can hear my voice. Yes, we can. I'm extremely thankful for Parsa Trust and Dr. Asad कि उन्होंने मुझे opportunity दी है to be here. And what we are going to do in next 30 to 40 minutes will be, हम ये देखेंगे कि patients of reflux disease को किस तरह से हमने approach करना है, generally कैसे present करते हैं, and how do we approach in our clinical practice to these patients. So let's start with our today's session. So let's start with the case. So it's a 45-year-old man who has presented in outpatient department. और उसकी जो primary complaint है वो ये है कि retrosternal discomfort है, and this discomfort is ongoing for 2 months. And it's a very common presentation. आप लोग generally अपनी practice में patients देखते होंगे जो सीने में जलन, सीने में बोझ, सीने में घुटन, इस तरह के symptoms के साथ present करते हैं. The first thing जो मेरे ज़हन में इसके साथ ही आनी चाहिए वो differential diagnosis है कि अगर किसी को सीने के पीछे जलन, बोझ या discomfort है तो उसमें क्या possibilities हो सकती हैं, कौन कौन सी diseases हो सकती हैं जो मुझे फौरन सोचनी जरूरी है. नंबर 1 चीज जो मुझे इस तरह के पेशेंट में हमेशा सोचनी पड़ेगी, keeping in context उसकी एज और उसकी बाकी चीजें,
दैट इज इस्कीमिक हार्ट डिजीज। कि कहीं ये पेशेंट्स जो है वो दिल के मसले का पेशेंट तो नहीं है, कहीं ये एंजाइना तो नहीं है, या ये कोई मायोकार्ड इंफार्क्शन तो नहीं है, बिकॉज दैट इज टिपिकल प्रेजेंटेशन। जब भी दिल के मरीज मेरे आपके पास आते हैं तो उनकी भी अमूमन कंप्लेंट रेट्रोस्टेनल डिस्कम्फर्ट ही पहली कंप्लेंट है जिसके साथ वो आएंगे। उसके बाद जो चीज आपको फौरन क्लिक करेगी वो रिफ्लक्स डिजीज है, गर्ड जिसको हम कहते हैं, और जिसको हम जाहिर है थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो रेट्रोस्टेनल पेन के साथ आपके पास प्रेजेंट कर सकती हैं, बट वो लेस कॉमन है, not that common as is ischemic heart disease or reflux disease. Eosinophilic esophagitis, aortic dissection, motility disorders, ये पेशेंट हाल ही नजर आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डीडी आपके जहन में आएगा वो एक या इस्केमिक हार्ट डिजीज है या रिफ्लक्स डिजीज। सो अब द नेक्स्ट स्टेप जो मुझे इसमें जाहिर है प्रोसीड करना है, दैट इज द हिस्ट्री ऑफ दिस पर्टिकुलर पेशेंट, जो मुझे गाइड करेगी कि इस पेशेंट में किस चीज की पॉसिबिलिटी है। सो आई हैव टू आइडेंटिफाई कि क्या सवाल पूछने चाहिए मुझे किसी भी पेशेंट से who complains of retrosternal discomfort. So there is a list of questions जो उसी वक्त मुझे पूछने चाहिए and which will clarify me regarding the exact cause of this particular complaint. So I will like to know कि उसकी पेन जो है वो मुसलसल रहती है या ऑन एंड ऑफ होती है, for certain time हुई और खत्म हो गई। Is it a pain या चेस्ट टाइटनेस है, या उसको इस तरह लगता है कि सीने में घुटन है, बोझ है, या सीने के ऊपर कोई चीज भारी प्रेशर पड़ा हुआ है। फिर मैं ये भी जानना चाहूंगा कि इज इट ओनली इन रेट्रोस्टेनल रीजन, या ये किसी आर्म में या नेक पे या बैक साइड पे रेडिएट करती है कि नहीं, इसके साथ पसीने आते हैं कि नहीं, इसके साथ उसको दिल डूबता हुआ महसूस होता है कि नहीं, और फिर ये पेन होती किस तरह से है, एग्रीवेटिंग रिलीविंग फैक्टर क्या है, मतलब ये कोई चीज खाने से रिलेटेड है या ये चलने से रिलेटेड है, सीढ़ियां चढ़ने से रिलेटेड है, एक्सर्शन से रिलेटेड है। इसके अलावा इसके साथ कुछ और अलामात हैं कि नहीं, क्या उसको खाने के बाद लगता है कि खाना जैसे वापस आ रहा है कि नहीं, इस सारी पेन का ताल्लुक जो है मोबिलिटी मूवमेंट के साथ है कि नहीं। एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूँ, व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन इज बिकॉज मेरे ज़हन में वही दो बड़े डिफरेंशियल हैं कि यहाँ ये इस्केमिक हार्ट डिजीज है, यहाँ ये रिफ्लक्स डिजीज है। तो अगर ये पेशेंट इस्केमिक हार्ट डिजीज का हो सकता है बिकॉज एज 40 से अबव है, तो जनरली वो पेन इंटरमिटेंट होती है, इट्स नॉट कंटिन्यूस, वो अमूमन घंटों से ज्यादा नहीं चलती, उसका ऑनसेट सडन हो सकता है, एक्सर्शन एसोसिएटेड हो सकती है, बट वो जनरली आवर्स में रहती है, दिनों में नहीं चलती। ये नहीं हो सकता कि उसको फ्यू डेज से कंटिन्यूस रेट्रोस्टेनल डिस्कम्फर्ट हो। सिमिलरली अगर चेस्ट टाइटनेस है, स्वेटिंग है, पेन सिर्फ रेट्रोस्टेनल ही नहीं है, बाजू में या बैक पे या नेक पे भी जा रही है, या उसकी एसोसिएशन एक्सर्शन से है, व्हेनेवर पेशेंट कहता है मैं सीढ़ियां चढ़ता हूँ तो उसके साथ ही मुझे सीने में घुटन स्टार्ट हो जाती है, सीने में दर्द शुरू हो जाती है। और अगर इस पेशेंट में डायबिटीज और हाइपरटेंशन का भी चांस है, तो देन माय माइंड शुड शिफ्ट टू इस्केमिक हार्ट डिजीज। फिर मुझे पहले इस्केमिक हार्ट डिजीज के मतलब सोचना है, रिफ्लक्स डिजीज जो है वो बैकग्राउंड में चली जाएगी बिकॉज ऑफ द सिविरिटी ऑफ द डिजीज। आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि इस्केमिक हार्ट डिजीज को मैंने बिल्कुल मुख्तलिफ वेवलेंथ पे डील करना है, रिफ्लक्स का पेशेंट जो है वो डिफरेंट तरीके से मुझे हैंडल करना है। बट अगर यही सिम्टम्स बर्निंग है ज्यादा rather than chest tightness or this thing, अगर इसका खाने के साथ एसोसिएशन है, if along with this retrosternal discomfort, पेशेंट ये भी कहता है कि खाना जब वो खाता है तो वो मुंह की तरफ वापस आता है, यूं लगता है जैसे ऊपर आ रहा है, या उसको बैड टेस्ट इन माउथ अक्सर रहता है। स्पेशली पेशेंट अगर आपको ये बताता है कि सुबह उठ के तो जब नींद से बेदार होता है तो उस वक्त उसका मुंह कड़वा होता है, दैट्स वन फीचर जो आपको थोड़ा सा हिंट मिलता है कि प्रोबेबली एसिड जो है वो वापस आ रहा है। या अर्ली मॉर्निंग ड्राइनेस, बिटर फीलिंग, और आधी रात को उठ के पेशेंट जो है उसको चेस्ट डिस्कम्फर्ट और उसके साथ फाउल स्मेल इन द माउथ और बिटर टेस्ट या वो एक्सेसिव बर्प्स, इस तरह के सिम्टम्स हैं, तो देन आई विल थिंक ऑफ गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। हम अपने पेशेंट की तरफ वापस आते हैं। That patient tells us that he has got this complaint for last 2 months. It mostly follows the meal. And he also complains कि फाउल स्मेल भी है माउथ में, स्पेशली जब वो सुबह उठता है तो मुंह का जायका खराब होता है या मुंह से पूरी स्मेल आती है, और बाज दफा उसको रात के वक्त भी प्रॉब्लम हो जाती है जिसमें उसको उठना पड़ जाता है और उसमें एक्सेसिव उसको डकार और बर्प्स और ये ज्यादा आने शुरू हो जाते हैं। अगला सवाल ये है, व्हाटएवर द सिम्टम्स, एक तो सिम्टम्स आपने पूछ लिया और उससे आपको आइडिया हो गया थोड़ा सा कि रिफ्लक्स हो सकता है कि नहीं। शुड आई गेट एन ईसीजी इन एवरी पेशेंट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। दिस विल डिपेंड ऑन कि पेशेंट की एज क्या है। आई नीड टू रिमेंबर के इस्केमिक हार्ट डिजीज के पेशेंट्स को भी खाना खाने से चेस्ट डिस्कम्फर्ट स्टार्ट हो सकती है। खाना खाना बजाते खुद इज अ प्रोसेस जिसके बाद हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है, तो दैट कैन लीड टू चेस्ट डिस्कम्फर्ट ड्यू टू इस्केमिक हार्ट डिजीज। तो एज इंपॉर्टेंट है, रिस्क फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, ओबीज है, फैमिली हिस्ट्री बड़ी स्ट्रॉन्ग है इस्केमिक हार्ट डिजीज की,
तो ऑब्वियसली मैं ये सोचूंगा कि गेट एन ईसीजी डन, रूल आउट द पॉसिबिलिटी कि उसको इस्केमिक हार्ट डिजीज हो, सो दैट मैं इजीली बाकी मैनेजमेंट अपनी फोकस कर सकूं। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे ज़हन में रखने पड़ेंगे कि इसका मील से एसोसिएशन इस्केमिक हार्ट डिजीज का भी हो सकता है। इस्केमिक हार्ट डिजीज की पेन बर्निंग की तरह से प्रेजेंट कर सकती है, और इस्केमिक हार्ट डिजीज की पेन जो है वो मिडनाइट को भी पेशेंट को उठा सकती है। सो ये पॉसिबिलिटी मुझे स्टिल ज़हन में रखनी पड़ेगी। वी गॉट an ECG of our patient done, और उसमें हमने देखा कि वो that was exactly normal. So somebody with retrosternal discomfort and one ECG is normal. If you are still suspicious तो आप एक और भी करा सकते हैं। Serial ECGs जो हैं वो 100% आपको रूल आउट कर देंगी कि कोई existing ongoing active ischemic heart disease इस वक्त है कि नहीं। Our most likely diagnosis in this patient is gastroesophageal reflux disease. What is gastroesophageal reflux disease? Basically क्या चीज है? और इसके साथ ही एक मिलती जुलती टर्म और यूज होती है, दैट इज नर्ड along with the GERD. So अब briefly हम देखेंगे कि क्या फर्क है इन दोनों चीजों में। Basically it's a symptomatic condition और histopathological alteration. अगर तो आपका डायग्नोसिस जो है वो हिस्ट्री बेस्ड है तो ऑब्वियसली आप सिर्फ हिस्ट्री पे ये फाइनलाइज कर सकते हैं कि पेशेंट हैज गॉट रिफ्लक्स डिजीज। और अगर उसमें एंडोस्कोपी की तरफ आप जाते हैं तो वहां पर भी कुछ ऐसे फीचर्स आपको बायोप्सी में मिल जाएंगे जो आपको डायग्नोसिस की तरफ ले जाते हैं। सबकी एंडोस्कोपी करनी है कि नहीं, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, वो अभी हम आगे चल के उसको देखेंगे। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर 100 पेशेंट मेरे पास वो हैं जो मैं क्लिनिकली डायग्नोस करता हूं एज गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, और अगर उन सबकी मैं एंडोस्कोपी करूं तो उनमें से अराउंड 30 to 40% है जिनके अंदर एंडोस्कोपी पे भी मुझे चीजें नजर आएंगी, मुझे अल्सर्स नजर आएंगे, रोयंस नजर आएंगे इन एसोफेगस। बाकी जो 60-70% पेशेंट्स हैं उनमें एंडोस्कोपी नॉर्मल होगी। These are the patients जिनके लिए एक अलग से टर्म भी यूज होती है, दैट इज नॉन एरोसिव रिफ्लक्स डिजीज के रिफ्लक्स के सिम्टम्स तो सारे हैं, अलामात सारी हैं, लेकिन जब एंडोस्कोपी हुई है तो उसके अंदर वो नॉर्मल निकला है, विच इज अ पॉसिबिलिटी, और प्रेडोमिनेंटली पेशेंट्स के अंदर ऐसा ही सिलसिला होता है। तो अगर सिम्टम्स हैं और एंडोस्कोपी पे भी चेंजेस हैं तो यू विल कॉल इट एज GERD, और अगर सिम्टम्स हैं और एंडोस्कोपी नॉर्मल है दैट यू विल कॉल इट एज NERD। और ऑब्वियसली ये डिवीजन आप तभी कर सकेंगे अगर आपने एंडोस्कोपी की तो, जो आपको हर पेशेंट में नहीं चाहिए। वील सी कि किस पेशेंट की एंडोस्कोपी होनी चाहिए। मेल फीमेल इक्वली इफेक्टेड होते हैं, बट की जो आगे एक कॉम्प्लिकेशन है बैरेट्स मेटाप्लेजिया जिसको कहते हैं, और जो बाज दफा कैंसर की फॉर्म में भी चेंज हो जाता है, वो समहाउ मेल्स में बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द फीमेल्स। हम इस तरफ आते हैं कि व्हाई पेशेंट्स डेवलप्स GERD। क्यों कुछ लोग जो है उनके अंदर एसिड वापस आना शुरू हो जाता है और उस तरह से सिम्टोमेटिक हो जाते हैं। उसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि बॉडी में क्या मैकेनिज्म है। वी ऑल नो कि खाना जो है वो इसोफेगस में से गुजर के पासेस ऑन टू द स्टमक, और स्टमक में एसिड होता है, और नॉर्मल स्टमक की पीएच जो है वो 1.5 to 2.5 है। बट देयर आर मैकेनिज्म्स, ऐसे बैरियर्स हैं जो ये इंश्योर करते हैं कि स्टमक का एसिड जो है वो इसोफेगस में वापस ना आए, बिकॉज इसोफेगस का जो मिकोजा है दैट इज नॉट ट्यून टू एसिडिक एनवायरनमेंट। अगर उसमें एसिड आएगा तो उसके अंदर फिर ज़ाहिर सोजिश होगी, इन्फ्लेमेशन होगी, अल्सर्स बनेंगे और पेशेंट भी सिम्टोमेटिक हो जाएगा। सो नेचुरल अल्लाह ताला ने बहुत सारे बैरियर्स ऐसे डेवलप किए हुए हैं जिनकी वजह से स्टमक का वापस इसोफेगस में जाना जो है वो कंट्रोल रहता है। अब वो क्या बैरियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, वहां पे एक स्फिंक्टर है एट द डिस्टल एंड ऑफ द इसोफेगस, स्टमक में एंट्री से पहले देयर इज अ सर्कुलर मसल व्हिच इज देयर, और वो क्लोज्ड रहता है, टोन हाई टोन है, और वो बेसिकली उस रास्ते को बंद रखता है। व्हेनेवर द फूड कम्स देयर तो ऑटोमेटिकली एक अंदर ऐसा निजाम है कि वो स्फिंक्टर रिलैक्स कर जाता है एंड फूड पासेस इनटू द स्टमक। बट खाना खाने के अलावा और अदर देन द पैसेज ऑफ द फूड दिस स्फिंक्टर विल रिमेन क्लोज, और ये अलाउ नहीं करेगा कि एसिड वापस आए। नंबर 2, स्टमक की लोकेशन अब्डोमेन के अंदर इस तरह से है, देयर इज एन एंगल बिटवीन स्टमक एंड द डिस्टल एंड ऑफ द इसोफेगस, जिसकी वजह से एसिड के लिए वापस आना जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है। फिर मैं और आप जानते हैं देयर इज अ डायफ्राम जो पर्टिकुलरली इसी रीजन के गिर्द जो है वो इसोफेगस के गिर्द रैप हुआ होता है, जिसके बेसिकली जिसके अंदर एक ओपनिंग है जिसके थ्रू इसोफेगस गुजरती है। दैट आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू एज अ बैरियर फॉर द एसिड टू मूव बैक इनटू द इसोफेगस। फिर वी ऑल नो कि इसोफेगस के अंदर पेरिस्टाल्सिस चल रही है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी पेरिस्टाल्सिस है, वो कंटिन्यूअसली इसोफेगस को खाली करती रहती हैं इवन इफ स्टमक इसके बावजूद कुछ ना कुछ एसिड ऊपर शिफ्ट कर देता है। देन जो हमारा सलाइवा है जिसको हम कंटिन्यूअसली स्वॉलो करते रहते हैं वो अल्कलाइन है, तो इवन ऊपर वाले 4 मैकेनिज्म के बावजूद अगर कोई एसिड इसोफेगस में पहुंचता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने का भी वहां पे प्रोसेस मौजूद है। और वी ऑल नो कि स्टमक इटसेल्फ जो है वो भी कंटिन्यूस इन मूवमेंट में है, वहां पेरिस्टाल्सिस भी चल रही है, और उस पेरिस्टाल्सिस का काम ये है कि स्टमक को खाली रखा जाए, और जितना वो खाली रहेगा उतने चांसेस ऑफ फूड कमिंग बैक इनटू द इसोफेगस जो है वो कम हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर आर सो मेनी बैरियर्स, सो मेनी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स व्हिच आर नॉट अलाउइंग द एसिड टू कम बैक इनटू द इसोफेगस। बट यही सारे मैकेनिज्म अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाएं
So any of this can result in passage of the acid back into the esophagus. अगर esophagus की peristalsis impaired हो गई है, अगर saliva neutralization का process impaired हो गया है, अगर esophageal mucosal defense impaired हो जाता है, या resting lower esophageal sphincter pressure कम हो जाता है, खुला रहना शुरू हो जाता है without any passage of food, तो obviously acid के लिए बड़ा आसान होगा कि वापस चला जाए. फिर हाइटस हर्निया बेसिकली ये है कि स्टमक का कुछ हिस्सा जो है वो थ्रू द डायफ्राम गुजर के ऊपर चेस्ट में चला जाएगा. सो वहां पैसेज ऑफ एसिड बैक इनटू द एसोफेगस बहुत इजी हो जाएगी. इसके अलावा नॉर्मली लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर ओनली रिलैक्सेस व्हेन द फूड अराइव्स देयर. इसके अलावा भी कुछ ना कुछ ट्रांजिएंट रिलैक्सेशंस बीच में दरमियान में होती रहती हैं विदाउट एनी फूड इन द एसोफेगस. बट वो नॉर्मल लिमिट के अंदर रहे तो उसमें फिर ये पॉसिबिलिटी रिफ्लक्स की नहीं है. बट अगर वो ट्रांजिएंट रिलैक्सेशंस ही बढ़ जाएं तो समटाइम उसकी वजह से भी पेशेंट्स को रिफ्लक्स डेवलप होना शुरू हो जाता है. तो बहुत सारे मैकेनिज्म है, बट मेन 2-3 जो मैकेनिज्म जो इस प्रॉब्लम की तरफ लेके जाते हैं हमें, वो या तो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर इनकम्पिटेंट हो जाए, या स्टमक का कुछ कंपोनेंट कुछ हिस्सा ऊपर चेस्ट में पास ऑन हो जाए, या जैसे मैंने बताया कि वो जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिलैक्सेशंस ऑफ स्फिंक्टर हैं वो एबनॉर्मल हो जाए, बहुत ज्यादा होनी शुरू हो जाए, तो तब भी ये प्रॉब्लम डेवलप कर जाएगी. वी कैन सी अगर वाल्व इनकम्पिटेंट हो गया तो इजीली गैस्ट्रिक कंटेंट जो है वो ऊपर मूव करना शुरू कर देगा. और आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू के जो एसोफेगस का मिकोजा है दैट इज नॉट ट्यून्ड फॉर दिस एसिडिक एनवायरनमेंट, तो उसमें इंजरी स्टार्ट हो जाती है. दिस इज व्हाट डू वी मीन बाय हाइटस हर्निया. स्टमक का कुछ कंपोनेंट थ्रू दैट पर्टिकुलर हाइटस चेस्ट में मूव कर जाता है. एंड यू कैन सी कि उसमें फिर वो जो एंगुलेशन वाला एलिमेंट था और जो डायफ्राम की कंट्रीब्यूशन थी एज ए बैरियर टू द एसिड वो खत्म हो जाती है. तो बड़ी आसानी के साथ एसिड जो है वो एसोफेगस में आना शुरू हो जाएगा. तो गैस्ट्रिक भी कुछ एबनॉर्मलिटीज हैं जिनसे बढ़ जाएगा. अगर एम्पटिंग उसकी इंपेयर्ड हो जाती है, इंट्राअब्डोमिनल प्रेशर ज्यादा हो जाता है, स्पेशली ओबीज पेशेंट्स के अंदर फैट की वजह से प्रेशर वो कंट्रीब्यूट करता है टू द रिफ्लक्स ऑफ द एसिड कंटेंट. सो ये कुछ चीजें भी इस मामले को बढ़ाएंगी. तो यू कैन अंडरस्टैंड कि बहुत सारे मैकेनिज्म है, बट ये 3 हमारे मेजर कंट्रीब्यूटर हैं टू द प्रॉब्लम ऑफ रिफ्लक्स डिजीज: इनकम्पिटेंट एलियस, प्रेजेंस ऑफ हाइटस हर्निया और इनअप्रोप्रिएट ट्रांजिएंट रिलैक्सेशंस ऑफ लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर. लेट्स मूव टू द सिम्टम्स. पेशेंट्स ये कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं हमारे क्लिनिक के ऊपर. कुछ सिम्टम्स तो बहुत टिपिकल है और वहां पर इस बीमारी को डायग्नोज करना इज नॉट अ बिग डील. सिम्टम्स आर ऑटोमेटिकली सजेस्टिंग कि क्या डायग्नोसिस है. एंड दैट इज अगर किसी को सीने में जलन हो रही है, या उसको खाना खाने के बाद लगता है कि जैसे खाना वापस आ रहा है, और उसके साथ माउथ में बिटर टेस्ट रहता है, तो ये तो बड़े टिपिकल सिम्टम्स हैं जिनमें डायग्नोसिस बड़ा क्लियर कट नजर आ रहा है. बट मुझे आपको जो केयरफुल होने की जरूरत है कि पेशेंट्स ऑफ GERD बास टाइम बड़े ही एटिपिकल प्रेजेंटेशन के साथ आते हैं. जो मोस्ट कॉमन एटिपिकल प्रेजेंटेशन मुझे आपको देखने को क्लिनिक में मिलती है वो है रिकरेंट सोर थ्रोट. बार बार गला खराब होता है, बार बार गले में इरिटेशन रहती है, और बाज दफा उसके साथ रेडनेस भी नजर आती है. और ये पेशेंट्स जनरली ENT में मल्टीपल विजिट्स कर चुके होते हैं और उनको एंटीबायोटिक्स और इस तरह की ट्रीटमेंट मिल जाती है. एंड देन somebody comes to diagnose that this problem is not local. ये कोई गले की इरिटेशन या गले की फ्रेंजाइटिस नहीं है, बेसिकली the acid which is coming back into the throat, और उसकी वजह से वहां इन्फ्लेमेशन रहना शुरू. फिर पेशेंट्स ऑफ GERD जो है उनको डेंटल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं. बैड स्मेल की हमने पहले भी बात की थी. पेशेंट्स को परसिस्टेंट कफ भी रह सकती है, क्रॉनिक कफ चली आ रही है और कोई उसकी वजह नहीं समझ आ रही, तो ऑलवेज कंसीडर द पॉसिबिलिटी ऑफ रिफ्लक्स डिजीज इन दिस पेशेंट्स. इसी तरह एस्थमा के सिम्टम्स बाज दफा प्रेसिपिटेट होते रहते हैं, एंड वो हम उसको सीजनल वेरिएशन के साथ या एक्सपोजर के साथ डील कोरिलेट कर रहे होते हैं, बट बेसिकली इट्स अ रिफ्लक्स ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट जो इसको प्रेसिपिटेट कर रहा है. समटाइम बहुत ज्यादा रिफ्लक्स हो रहा हो तो पेशेंट्स को रिकरेंट निमोनियाज भी होने शुरू. ईयर एक कैन बी अनदर प्रेजेंटेशन. ये जो गले की होर्सनेस और सोर थ्रोट, लैरिंजाइटिस, ये तो बड़ी यूजुअली सीन प्रेजेंटेशन है जिनमें पेशेंट का डायग्नोसिस डिले होता है बिकॉज प्रेजेंटेशन एटिपिकल है. सो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट ये होगी कि जब भी आप कोई ऐसा पेशेंट देखें जिसमें आपको लगे कि ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द ट्रीटमेंट, या बार बार उसका गला खराब हो रहा है, बार बार सोर थ्रोट और फेरिंजाइटिस हो रहा है, सो स्पेंड एक्स्ट्रा 5 मिनट्स और उससे थोड़ा इंक्वायर करके देखें. यू मे कम अप विद द डायग्नोसिस कि ये तो बेसिकली रिफ्लक्स का पेशेंट है, और इसको आप एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दे दें तो उससे भी ज़ाहिर है सेटल डाउन हो सकता है. लेट्स गो बैक टू आवर ओन पेशेंट. 45-year-old मैन था जिसको टिपिकल डिस्कम्फर्ट थी और 2 महीने से उसको चली आ रही है. हाउ टू कंफर्म द डायग्नोसिस, दैट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हमें क्लिनिकली तो लग रहा है कि उसके सिम्टम बड़े टिपिकल हैं और रिफ्लक्स का ही पेशेंट है और इस्केमिक हार्ट डिजीज को हमने रूल आउट कर लिया. डायग्नोसिस में मेरे पास ये ऑप्शंस है. एक तो ये है कि मैं सिम्टम्स पे ही डायग्नोसिस करूं.
दूसरा एंडोस्कोपी कर सकता हूँ। थर्ड पीएच मॉनिटरिंग हो सकती है, और पीएच मॉनिटरिंग में एक नई टेक्नोलॉजी इम्पेडेंस मॉनिटरिंग भी है, जहां सिर्फ एसिड रिफ्लक्स नहीं, नॉन एसिडिक रिफ्लक्स जो है उसको भी आप जाहिर है क्वांटिफाई कर सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं कि वो इसोफेगस में कहां तक, कितनी हाइट तक जो है रिफ्लक्स आ रहा है। बट एक चीज याद रखें, डायग्नोसिस GERD क्लिनिकल है, इट हैज टू बी बेस्ड ऑन हिज हिस्ट्री and the points that you have explored on history. And if you are convinced that it is a GERD, you don't need to go ahead with an endoscopy for these patients. तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि एंडोस्कोपी कहाँ होनी चाहिए? क्या हर पेशेंट की करनी चाहिए? नहीं, अभी तक कोई गाइडलाइन, कोई सोसाइटी ये रिकमेंड नहीं करती. You don't need endoscopy. You don't need to refer that patient for endoscopy if you are convinced that symptoms are typical for GERD. तो किन की एंडोस्कोपी होनी चाहिए? There are few certain symptoms जिन पेशेंट्स को आपको एंडोस्कोपी के लिए फिर आगे रेफर करना पड़ेगा, बिकॉज वहां पॉसिबिलिटी अल्टरनेटिव होने का चांस है. तो ये जनरली जो एक्स्ट्रा एसोफेजियल सिम्टम्स वाले पेशेंट्स हैं, यहाँ एंडोस्कोपी का थ्रेशोल्ड थोड़ा सा नीचे आपको रखना पड़ेगा, बिकॉज टिपिकल सिम्टम्स नहीं है. इफ समबडी हैज न्यू ऑनसेट सिम्टम आफ्टर 45 की एज के बाद पहली दफा उसको रिफ्लक्स के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो यू शुड बी सस्पिशियस, यहाँ एंडोस्कोपी कर लेना बेहतर है. समबडी विद एनीमिया, somebody with dysphagia, अगर साथ ये भी आपको पेशेंट बता रहा है कि वो खाना खाता है और वो यहाँ सीने के पीछे जाकर रुक जाता है, तो that is not a symptom which is usual for reflux disease. पेशेंट जिसको वेट लॉस हो रहा है इन सारे सिम्टम्स के साथ, या काला पखाना, मलीना और हेमेटोमेसिस का सिम्टम्स अगर आपको मिलते हैं, या पेशेंट को आपने डायग्नोज कर लिया, उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट शुरू की और पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर, तो यू विल हैव टू गो फॉर एंडोस्कोपी. फिर बेहतर यह है कि आप एक दफा उसका एग्जामिनेशन जरूर करवा लें, टू रूल आउट द अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी कि कोई और डायग्नोसिस ना हो, क्योंकि असल में कुछ बीमारियां ऐसी जरूर हैं जो इसी प्रेजेंटेशन के साथ सामने आती हैं. उसमें सबसे बड़ा डर आपको मैलिग्नेंसी का ही होता है कि पेशेंट अगर ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रहा, तो यू शुड सस्पेक्ट कहीं मैलिग्नेंसी ना. Generally in GERD patients after 5 years of disease, you would like to go ahead with an endoscopy because long term disease के साथ कुछ कॉम्प्लिकेशन ऐसी हैं जो आप रूल आउट करना चाहेंगे, like Barrett's, जिस पे 1-2 मिनट हम एंड पे बात करेंगे. तो हमारा पेशेंट को 45 इयर्स एज में न्यू ऑनसेट सिम्टम है, सिर्फ 2 महीने से सिम्टम्स चल रहे हैं. सो डिस्पाइट हैविंग नो अदर अलार्म सिम्टम, वी शुड डिसाइड टू हैव एन एंडोस्कोपी इन दिस पेशेंट. अब एंडोस्कोपी पे क्या नजर आ सकता है? एक तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 60 से 70% पेशेंट्स में तो एंडोस्कोपी नॉर्मल निकल आएगी. सो यू नीड टू बी रेडी फॉर दैट कि एंडोस्कोपी में हो सकता है कि कुछ भी ना निकले. बट देन ऑब्वियसली बाकी 30-35% पेशेंट्स में आपको ऐसी चीजें मिलेंगी which will give you the diagnosis. तो उसमें हम जनरली एंडोस्कोपी में क्लासिफिकेशन एक यूज करते हैं कि भी अगर उसमें लीनियर एरोजन्स नजर आ रही हैं, उनका साइज 5 मिलीमीटर से कम है लाइक दिस, तो हम उसको ये कहते हैं. अगर वो एरोजन्स लॉन्गर देन 5 सेंटीमीटर हैं या 5, तो फिर हम इसको जाहिर है पहले क्लास बी कहते हैं. अगर वो सर्कमफ्रेंशियल इन्वॉल्व करना शुरू कर दें सारे लुमन को, लेस देन 75% तो सी है, और अगर सारा ही इसोफेगस का लुमन जो है वो इन्वॉल्व हुआ है, तो यू मे कॉल इट एज डी. और इसमें अगर आप बायोप्सी लें तो उसमें भी कुछ टिपिकल फीचर्स ऐसे हैं जो कंफर्म कर सकते हैं. बट जनरली यू डोंट नीड बायोप्सी, इट्स अ क्लिनिकल डायग्नोसिस. और अगर आप एंडोस्कोपी करते हैं और उसमें इरोसिव रिफ्लक्स डिजीज है, तो उसमें जैसे मैंने आपको क्लास ए बी सी डी वाले दिखाए हैं, दैट्स गुड इनफ फॉर द डायग्नोसिस. बायोप्सी हम तभी लेते हैं जब हमें मिकोजा के एरिया में कहीं ये शक पड़ जाता है कि ये बैरेट्स ना हो, देन यू हैव टू टेक 4 क्वाड्रेंट बायोप्सीज और उसको रूल आउट करना जरूरी हो जाता है. अगला सवाल, डू आई नीड पीएच मॉनिटरिंग इन एवरी पेशेंट फॉर रिफ्लक्स डिजीज? ये भी एक टेस्ट है. जब मैंने ये बात की कि भाई रिफ्लक्स डिजीज का तो ताल्लुक इस चीज से है कि एसिड वापस डिस्टल एंड ऑफ इसोफेगस में आता है, तो फिर मेरे पास एक टेस्ट भी है ऐसा जो बेसिकली डिस्टल एंड ऑफ इसोफेगस के ऊपर पीएच मॉनिटरिंग कर सकता है. सवाल यह है कि क्या उसकी जरूरत है या नहीं है? द आंसर इज जनरली नो, यू डोंट नीड दिस सॉर्ट ऑफ टेस्ट. ऑब्वियसली इन्वेसिव टेस्ट है और उसके अंदर जाहिर है कॉस्ट भी इन्वॉल्व है, सो यू डोंट नीड दिस टेस्ट for regular diagnosis of reflux disease. So फिर ये कहाँ चाहिए? Very select group of patients. ऐसे पेशेंट्स जो किसी ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, रिफ्रैक्टरी हैं. ऐसे पेशेंट GERD के जहाँ सर्जरी का प्लान हो गया, वहां आप में कंसिडर करेंगे. ऐसे पेशेंट्स जिनके एटिपिकल सिम्पटम्स हैं, सो बड़ी लिमिटेड सी एक पॉपुलेशन है जहां आपको पीएच मॉनिटरिंग की जरूरत होगी. अदरवाइज इट्स नॉट अ टेस्ट जो आप रूटीनली यूज करेंगे. सो एक एल्गोरिदम थोड़ा सा आपकी गाइडेंस के लिए कि एक तो टिपिकल सिम्टम है और उसको आपने ट्रीटमेंट दे दी और वो रिस्पॉन्ड कर गया, तो वहां तो मसला आसान है. वहां तो अगला सवाल ये होगा कि कितनी देर ट्रीटमेंट चलनी है और किस तरह चलना है. बट कुछ ऐसे पेशेंट भी होंगे जिनमें आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा डिस्पाइट इसके कि आपको लग रहा है कि बड़ा टिपिकल रिफ्लक्स डिजीज है. तो अगर तो टिपिकल सिम्टम्स हैं तो हमने पहले बात कर ली कि उनकी एंडोस्कोपी करवाएं.
और एंडोस्कोपी पे अगर कोई डायग्नोसिस अल्टरनेटिव आ जाता है तो बस ठीक है, उसका डायग्नोसिस, उसके ट्रीटमेंट के पीछे जाया जाए। एटिपिकल सिम्टम्स वाले पेशेंट्स जैसे सोर थ्रोट और रिकरेंट ईयर एक और वो जो हमने सारे पढ़े थे, वहां अगर आपके ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो इट्स बेटर कि आप एक ENT या पल्मोनोलॉजी या उसकी एक कंसल्टेशन जरूर करवा लें, टू हैव अ रूल आउट द पॉसिबिलिटी कि डायग्नोसिस कुछ हट के ना हो। इन दोनों पेशेंट्स में अगर ऐसा कुछ नहीं है तो यू विल डू एन एंडोस्कोपी, और अगर एंडोस्कोपी नॉर्मल निकलती है, अब यहाँ पर ऑब्वियसली ये नर्ड की कैटेगरी का पेशेंट है जो रिस्पॉन्स टू द ट्रीटमेंट नहीं दे रहा, यहाँ आपको फिर जाहिर हो सकता है कि उसको पीएच मॉनिटरिंग की जरूरत होगी। सो वो यहाँ यू विल गो फॉर दिस पीएच मॉनिटरिंग टेस्ट, अदरवाइज कोई इसकी जरूरत आपको रूटीन में नहीं पड़ेगी। तो बॉटम लाइन ये है कि डायग्नोसिस ऑफ GERD इज क्लिनिकल और इट हैज टू बी बेस्ड ऑन योर असेसमेंट, क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ द पेशेंट। सो आई कैन से कि अगर 100 पेशेंट आपके पास GERD के आते हैं तो प्रॉब्ली 90 to 95 जो है उनको आप बड़ा अच्छा खुद ही हैंडल कर सकते हैं, आपको उसको आगे किसी स्पेशलिस्ट को, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम इस चीज पे आते हैं कि अब जब डायग्नोसिस हो गया तो फिर हाउ आर वी गोइंग टू मैनेज दिस पर्टिकुलर पेशेंट। 3 चीजें हैं जो मैं मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, नेक्स्ट इज ड्रग्स, एंड ऑब्वियसली एक सर्टेन परसेंटेज स्टिल वो होगी जहां हमें सर्जरी की तरफ जाना पड़ सकता है। सो लेट्स सी वन बाय वन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आपको पेशेंट के साथ 5-10 मिनट लगाने पड़ेंगे। व्हाई? बिकॉज रिफ्लक्स डिजीज एंड पेप्टिकल डिजीज ये ऑब्वियसली मॉडर्न लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं जो विद द चेंजिंग लाइफस्टाइल, जिसमें मैं और आप सब जो है वेरी फेमिलियर हैं उसके साथ, जहां मोबिलिटी कम है, जहां ईटिंग हैबिट्स चेंज हो गई हुई हैं, वहीं ये वाली डिजीजेस भी बढ़ गई हैं। सो अगर मैं उसके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को फोकस नहीं करता और उसको किसी तरह से उस पर लेके नहीं आता तो ऑब्वियसली ही इज नॉट गोइंग टू बी ऑफ ट्रीटमेंट। उसकी ट्रीटमेंट कुछ ना कुछ चलती रहेगी, वो डॉक्टर बदलता रहेगा, वो दवाइयां बदलता रहेगा, उसको रिलीफ नहीं मिल सकेगा, एंड दैट्स नॉट अ गुड सिचुएशन टू हैव। सो इसलिए जब आप पहला सेशन पेशेंट के साथ करते हैं तो वहां इट्स बेटर कि उसको कुछ ना कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में गाइड किया जाए। उसमें एक ऑप्शन ये भी होता है जो हम सब करते हैं कि हमने कुछ रिटर्न इंस्ट्रक्शंस भी तैयार की होती हैं जो पेशेंट्स को हैंड ओवर किया जाता है, बट उसके साथ डिस्कशन करके चीजें एक्सप्लेन करना प्रोबेबली उसका इम्पैक्ट ज्यादा आता है। सो यू आर गोइंग टू टेल हिम कि उसने अपना वजन रिड्यूस करना है, बिकॉज हमने देखा है कि जिसमें फैट ज्यादा होती है उसमें रिफ्लक्स के चांसेस ज्यादा होते हैं। फिर हमें ये भी पता है कि कुछ डाइटरी आइटम्स ऐसे हैं विच आर नोन टू बी एसोसिएटेड विद इंक्रीज एसिड प्रोडक्शन, और जब एसिड ज्यादा बनेगा तो वो रिफ्लक्स के चांसेस भी ज्यादा होंगे। सो आप कैफीन और पेपरमेंट और फैटी फूड और अल्कोहल, ये तो नोन है कि रिफ्लक्स को बढ़ा। स्मोकिंग एक और मेजर फैक्टर है। What is confirmed is कि स्मोकिंग के साथ लोअर एसिड टोन लॉस हो जाती है, एंड दैट लीड्स टू मोर चांसेस ऑफ रिफ्लक्स। सो आपको ये भी स्टॉप करनी पड़ेगी। एक और जो इशू जो आप बहुत ज्यादा मेरी आपकी लाइफ की रूटीन का भी हिस्सा बन गया हुआ है, दैट इज लेट डिनर एंड लेट ईटिंग। और नतीजा ये निकलता है कि जब हम खाना खा लेते हैं और उसके बाद फौरन लेट जाते हैं तो उसमें खाने के वापस आने की टेंडेंसी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सो जनरली यू एडवाइज टू द पेशेंट कि कम से कम खाना रात सोने से 3 घंटे पहले खाना चाहिए। जितना उसको वो अर्ली कर ले, अगर आप उसको ये बताएं कि मगरिब की नमाज के साथ रात तक खाना खा लेंगे तो दैट्स द बेस्ट थिंग फॉर हिम। अगला पेशेंट का फिर जनरली ये होता है कि भाई भूख जल्दी लग जाती है और इस तरह की चीजें हैं, बट उसको हैंडल किया जा सकता है। मेन मील जो है उसको सोने से कम 3 घंटे पहले होना चाहिए। Then you have to ask the patient to raise his head end of the bed at least for 6 inches. अच्छा, यहाँ गड़बड़ी हो जाती है कि अगर आप सिर्फ उसको ये कहें कि सर उठाना है, ऊंचा रखना है, तो जनरली लोग फिर 2 सराहने इस्तेमाल करते हैं। बट यू एंड वी नो कि इसोफेगस और स्टमक का जो जंक्शन है वो तो डिस्टल एंड ऑफ द चेस्ट, जो स्टर्नम है वहां पे है। सो एटलीस्ट चेस्ट शुड बी हायर देन द एब्डोमेन। सो उसके लिए उसको यहाँ तो ये है कि बेड के नीचे जो है वो ब्लॉक्स दिए जाएं, वहां को ऐसी चीजें रखी जाएं कि पूरा बेड जो है वो थोड़ा सा इंक्लाइंड हो जाए। या पिलोज आजकल ऐसे मिलते हैं जो विच इंश्योर्स के आपकी जो अपर हाफ द बॉडी है वो दैट विल बी इन अ हायर पोजीशन एज कंपेयर्ड टू एब्डोमेन और लेग्स। ये मॉडिफिकेशन बड़ी सिंपल है, परमानेंट है और पेशेंट को अपनी लाइफस्टाइल के अंदर इंट्रोड्यूस करनी पड़ती हैं। अगर आप उसको पहले विजिट में ये एक्सप्लेन कर पाते हैं तो आपको आइंदा बड़ी आसानी हो जाएगी, बिकॉज दिस विल गिव अ लॉट ऑफ रिलीफ टू द पेशेंट और ड्रग्स पे डिपेंडेंस होने का चांसेस कम हो जाते हैं। सो कुछ चीजें नोन है, वी ऑल नो कि भाई वो उनका इस्तेमाल, बट अनफॉर्चुनेटली इन चीजों का इस्तेमाल अब हमारी रेगुलर डाइटरी हैबिट्स का हिस्सा बन गया है। सो उसको बीच में से निकालना इट्स नॉट दैट सिंपल, बट आपको पेशेंट को कन्विंस करना पड़ता है कि भाई जिंदा रहने के लिए खाएं rather than eating for living for eating। तो तभी फिर इस माइंडसेट पे लाया जा सकता है कि वो चीजें जो डिस्टर्ब करती हैं उनको ना इस्तेमाल किया जाए। This should be the posture the patient should be lying if we have to get ourselves relieved of this problem.
लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बाद अगली बात प्रोटॉन पंप इनहिबिटर. वी ऑल नो कि फॉर लास्ट सो मेनी डेकेड्स ये ड्रग्स इस्तेमाल हो रही हैं, दे आर वेरी इफेक्टिव. अब ये किस तरह हेल्प करती हैं? इंटरेस्टिंगली इसके साथ मैं आई एम नॉट एड्रेसिंग द प्राइमरी कॉज ऑफ रिफ्लक्स डिजीज. कॉज तो मैंने बात की थी कि वो स्फिंक्टर इनकम्पिटेंट हो गया या हाइड्रोसेनिया बन गया या ट्रांसिएंट रिलैक्सेशन ऑफ एलईएस जो है बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन मेरे पास उसका ड्रग्स में सोल्यूशन नहीं है. सो मैं फिर ड्रग्स में सोल्यूशन मैंने इस तरह से उसको करूंगा कि मैं एसिड की प्रोडक्शन को कंट्रोल करूं, ना एसिड बने और ना वापस रिफ्लेक्ट करे और ना डिस्टल एंड ऑफ द इसोफेगस के अंदर जो है उसकी वजह से इंजरी हो. दैट्स व्हाई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो हैं वो बड़े इफेक्टिव हैं इन कंट्रोलिंग द सिम्टम्स. बट लिमिटेशन ये है कि जिस दिन उसने टैबलेट नहीं लेनी, जिस दिन कैप्सूल नहीं खाना, उस दिन ये पॉसिबिलिटी का रिफ्लक्स होगा वो काफी रहेगा. अब उस चीज उसके चांसेस काफी रहते हैं. उस चीज को कवर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से किया जा सकता है. कितनी देर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स यूज करनी है, डोज क्या यूज करनी है? मिनिमम डोज से स्टार्ट करनी है. विल स्टार्ट विद 20 मिलीग्राम अगर आपको ओमेप्राजोल दे रहे हैं, और उसके बाद यू विल वेट फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स बिफोर डिसाइडिंग कि उसको बढ़ाने की जरूरत है. वंस सिम्टम रिलीव्ड हो जाते हैं तो फिर उसके बाद एटलीस्ट 4 to 8 वीक्स जो है आप ट्रीटमेंट देंगे. अब उसके बाद हाउ शुड आई कंटिन्यू विद दैट? अगर पेशेंट बिल्कुल सेटल हो गया, कोई उसको अब सिम्टम्स नहीं है, आई शुड ट्राई टू लो डाउन द डोज. अगर मैं 40 दे रहा हूँ तो 20 करूँ, अगर मैं ट्वाइस अ डे दे रहा हूँ तो उसको फिर once a day करके देखो एंड गिव टाइम टू दैट. 1 हफ्ते 2 हफ्ते अगर पेशेंट फिर भी ठीक रहता है, फिर मैं और नीचे कर सकता हूँ. जनरली मैं फिर उसको इस तरह से करता हूँ कि 1 दिन छोड़ के शुरू करके देखो, 2 दिन छोड़ के शुरू करके देखो, बिकॉज सडन स्टॉपेज ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर से जनरली सिम्टम्स वापस आ जाते. सो इसलिए टेपर ऑफ करने की कोशिश करें. अगर हो जाए तो दैट्स द बेस्ट यू कैन अचीव, बट दैट इज ओनली पॉसिबल अगर उसकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस चलती हैं साथ, जो कि अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी ऑफ सिचुएशंस में चल नहीं पाती ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस. दैट इज प्रिसाइजली द रीजन कि ये पेशेंट्स जो हैं वो बार बार इन्हीं ड्रग्स पे जो है वो ऑन एंड ऑफ कंटिन्यू करते हैं. मेंटेनेंस ड्रग्स रखनी पड़ती हैं, रिकरेंट यूज करना पड़ता है. There is enough evidence to prove कि proton pump inhibitors जो है reflux disease में healing बड़ी अच्छी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है. We all know H2 blockers, और इसका भी evidence बड़ा strong है कि H2 blockers जो हैं वो reflux disease में are inferior to proton pump inhibitors. अलबत्ता one point is different here. Night time control जो है वो H2 blockers का proton pump inhibitors से बेहतर है. उसकी वजह यह है कि PPIs basically need active functioning channels. और जो प्रोटॉन पंप्स फंक्शनिंग उस वक्त होते हैं जब मैं खाना खा रहा होता हूँ, तो उस वक्त मैक्सिमम फंक्शनिंग होते हैं, वहां ड्रग भी ज्यादा इफेक्टिव होती है. जब नाइट टाइम पे बिल्कुल फास्टिंग में चल रहा होता है, उस वक्त 50-60% पंप सिर्फ इफेक्टिव चल रहे होते हैं. वहां पर इसका वो एफिकेसी नहीं है जो H2 ब्लॉकर्स के साथ है. लेकिन नई जो एसिड कंट्रोलिंग ड्रग्स हैं, PCAB वगैरह, वहां ये वाला एस्पेक्ट जो है वो भी कवर हो गया. उसको मैं इन अ मिनट जो है दोबारा एड्रेस करता हूँ. So there is good enough evidence कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के यूज से पेशेंट के सिम्टम्स का रिलीफ, रिगर्जिटेशन का रिलीफ, चेस्ट पेन का रिलीफ, क्रॉनिक कफ वाले पेशेंट्स जो हैं वो भी अच्छा खासा इंप्रूव कर जाते हैं, होर्सनेस वाले पेशेंट्स जो हैं वो भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं. So this drug does work in these patients and get the symptoms relief. पिछले कुछ सालों से हम नई दवाइयां भी देख रहे हैं, मसलन डेक्सलेंसोप्राजोल है. इसमें क्या एडेड एडवांटेज है? ये डुअल रिलीज ड्रग है. बेसिकली इसमें मेडिसिन जो है वो स्लोली रिलीज होती है, और 2 पीक्स जो आपको नजर आ रही हैं बेसिकली दैट टेल्स यू के कुछ आवर्स के बाद एक और रिलीज होती है फ्रॉम द ड्रग. इसका नतीजा ये है कि इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है और एफिकेसी है वो बेहतर है. अगर एक नॉर्मल प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हम लेते हैं, ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, तो वी एक्सपेक्ट के वो उसमें 16 से 18 घंटे उसका टोटल एफिकेसी टाइम है. बट ये ड्रग्स 24 आवर्स तक भी उसको अच्छा कवर कर सकती हैं. सो एक तो ये एज है. दूसरा जो एज इन ड्रग्स के साथ हमें मिल गया वो अब इसका खाने के साथ जो है बहुत ज्यादा एसोसिएशन उस तरह नहीं रखनी पड़ती. अगर आपने ओमेप्राजोल देना है तो वो खाने से कम 15-20 मिनट पहले आपको देना पड़ता है. बट ये ड्रग्स जो है खाने के बाद भी इस्तेमाल की जा सकती है. और अब आप सब ने एक और ग्रुप ऑफ ड्रग्स जो है वो भी मार्केट में है और आप सब लोग इसको इस्तेमाल भी कर रहे होंगे, विच इज पोटेशियम कंपैटिटिव एसिड ब्लॉकर्स, PCAB के नाम से आती हैं. ये मुख्तलिफ ब्रांड्स उसके अवेलेबल हैं, वी आर ऑल फेमिलियर. ये किस तरह से फर्क है? बेसिकली उसी पंप को ब्लॉक करती है, बट इसके अंदर कोई दरमियान में इंटरमीडिएट कोई इट्स नॉट अ प्रो ड्रग. मतलब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो हम रूटीन में यूज करते हैं वो पहले कन्वर्ट होते हैं सल्फिनामाइड में, उसके बाद वो पंप को बाइंड करते हैं. और वहां मैंने आपको पहले बताया कि वो एक्टिव पंप पे उनका एफिकेसी अच्छी है, रेस्टिंग पे इतनी अच्छी नहीं है. PCAB जो है वो उनमें कोई प्रो ड्रग नहीं, एफिकेसी उसको इमीडिएटली अपना एक्शन स्टार्ट कर लेती है. नंबर 2, उसको रेस्टिंग और स्टिमुलेटेड होने से कोई नहीं फर्क पड़ता. नंबर 3, इसको एसिडिक एनवायरनमेंट नहीं चाहिए होता टू स्टार्ट इट्स फंक्शनिंग. सो आप खाने के बाद भी दे देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उस इक्वली इफेक्टिव है फॉर
फॉर आवर पेशेंट्स। ये कंपैरिजन है पुरानी ड्रग्स प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का और पीकैप का। यू कैन सी कि अभी पीकैप जो है उसमें कोई प्रो ड्रग नहीं है, सो स्टेबल रहता है एसिडिक कंडीशन में। उसका जो वो जो प्रोटॉन पंप के साथ बाइंडिंग है वो रिवर्सिबल है, खाने के साथ आगे पीछे लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और रेस्टिंग और स्टिमुलेटेड दोनों पीपी पंप इक्वली कंट्रोल हो जाते हैं, सो 24 आवर इफेक्ट उसका अच्छा रहेगा। इवन इफ खाना पेशेंट नहीं भी खा रहा तो ड्रग इफेक्टिव रहेगी। ये हम पहले देख चुके हैं कि इसमें लॉन्ग टर्म प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का यूज जनरली पेशेंट्स ऑफ GERD में ही होता है। यही पेशेंट्स हैं जो साल से भी ले रहे होते हैं। सो यहाँ मुझे आपको साइड इफेक्ट्स के बारे में भी थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। नॉर्मली वी ऑल कंसिडर कि अच्छा इनकी दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये ओवर द काउंटर दी जा सकती हैं, बट लॉन्ग टर्म यूज में देयर आर साइड इफेक्ट्स जो आप ध्यान में रखें। पेशेंट्स ऑन लॉन्ग टर्म PPI निमोनिया के चांसेस ज्यादा है, इन पेशेंट्स में इन्फेक्शंस के चांसेस ज्यादा है, खासतौर पर सी डिफ इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा है। फिर B12 एब्जॉर्प्शन के साथ प्रॉब्लम करती हैं, इस वजह से विटामिन B12 में एब्जॉर्प्शन एक मेजर इशू है। अगर पेशेंट का वो बेसिकली इंट्रिंसिक फैक्टर रिलेटेड इशू है जिसकी वजह से B12 डेफिशिएंसी है। These people are more prone to have osteoporosis and fractures, iron malabsorption, hypomagnesemia. So जब आप पेशेंट को अगर दवाइयां महीनों सालों में देते हैं तो इन चीजों के बारे में भी केयरफुल रहे। आपके पास पेशेंट ऐसे आए होंगे जो PPIs ले रहे हैं और उनको सडनली बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, टांगों में, पाँवों के नीचे, हाथों में बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, and they have no explanation for that. Basically वो B12 deficiency leading on to neuropathy है। So इन चीजों के बारे में भी थोड़ा मुझे आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। वापस हम अपने पेशेंट पे आते हैं। हमने उसको ओमेप्राजोल एडवाइस की और वंस अ डे बिफोर ब्रेकफास्ट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताई, डाइटरी एडवाइस बताई। पेशेंट 1 महीने बाद फिर आता है, उसमें पार्शियल इंप्रूवमेंट ऑफ सिम्टम्स है। अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो उसकी वजह क्या हो सकती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वजह है वो नॉन कंप्लायंस। आप यही देखेंगे कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस उस तरह से नहीं हो पाएंगी जिस तरह से मैं और आप एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को। दैट जनरली इज बिहाइंड द फैक्ट कि पेशेंट जो है वो दवाइयां लेने के बावजूद बेहतर नहीं हो। बट यहाँ आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा, GERD के साथ फंक्शनल बाउल डिसऑर्डर्स, डिस्पेप्सिया और IBS ये भी बड़े कॉमन है। रॉन्ग डायग्नोसिस वाली पॉसिबिलिटी, ये मैं और आप जब भी पेशेंट्स आता है वापस इस कंप्लेंट के साथ कि मैंने दवाई ली है लेकिन फर्क नहीं पड़ा, तो ये तो पॉसिबिलिटी हमें हमेशा ध्यान में रखनी पड़ती है कि अल्टरनेटिव डायग्नोसिस। एक थोड़ा सा इशू हाइपर सेंसिटिव इसोफेगस वाला भी है, उसमें एसिड रिफ्लक्स एब्नॉर्मल नहीं है लेकिन डिस्टल एंड ऑफ द इसोफेगस जो है वो बेसिकली हाइपर सेंसिटिव है टू व्हाटएवर कंटेंट इज कमिंग। वहां PPIs बहुत ज्यादा आपको हेल्प नहीं कर पाते बिकॉज एसिड का रिफ्लक्स चूंकि है ज्यादा नहीं, सो इसलिए ड्रग भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती। इस पेशेंट में हमने डोज बढ़ा दी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इंश्योर की और अब पेशेंट जो है वो 6 महीने बाद आपके पास वापस आता है, साल बाद वापस आता है। जनरली पेशेंट्स कुछ ना कुछ विजिट करते रहते हैं और जनरली जब आपके पास पेशेंट इस तरह के आते हैं तो वो उनका एक ही मसला होता है कि वो ड्रग्स को स्टॉप नहीं कर पाते। जब भी वो ड्रग स्टॉप करते हैं सिम्टम वापस आ जाते हैं। सो नाउ वी हैव टू सी कि इसमें और क्या ऑप्शन है, क्या ड्रग्स के अलावा क्या किया जा सकता है। देयर इज एन ऑप्शन ऑफ सर्जरी। बहुत ज्यादा मैं इस पर बात नहीं करूंगा, ऑब्वियसली ये सर्जन्स की डोमेन है। फंडोप्लाइकेशन इस सर्जरी का नाम है जिसमें 360 270 डिग्री बेसिकली वो करते हैं कि स्टमक का फंडस जो है उसको डिस्टल एंड ऑफ इसोफेगस के गिर्द रैप कर देते हैं। सो एक आर्टिफिशियल स्फिंक्टर क्रिएट हो जाता है, वहां एक बैरियर सा बना देते हैं जिससे फिर एसिड का स्टमक से वापस इसोफेगस में आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक ऑप्शन है जो जनरली वो पेशेंट्स जो ड्रग्स को स्टॉप करना, ड्रग्स से तंग आ जाते हैं, दे डोंट वांट टू बी ऑन मेडिकेशंस, और स्पेशली यंग पेशेंट्स में जहां आपको लगता है कि ये तो अब सारी जिंदगी इसी तरह गुजरेगी, तो दिस ऑप्शन कैन बी गिवन टू द पेशेंट और इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी और लैप्रोस्कोपिक फंडोप्लाइकेशंस के साथ पेशेंट्स की मॉर्बिडिटी भी कम होगी इस सर्जरी से और इनके रिजल्ट्स भी बेहतर है। और क्या ऑप्शंस हैं, मे बी हमारी कंट्री में अवेलेबल नहीं है हमें बहुत ज्यादा। इस तरह के रिंग्स भी अब दुनिया में आ चुके हुए हैं जिनको लिंक्स सिस्टम है। एक रिंग है जो आप लैप्रोस्कोपिकली डिस्टल एंड ऑफ इसोफेगस के गिर्द रैप कर देते हैं। व्हाट इट डज इट, ये उस डिस्टल एंड ऑफ इसोफेगस को क्लोज रखता है और जब खाना आता है तो उसके रिस्पॉन्स में खुल जाता है, अदरवाइज उसको क्लोज रखेगा। सो वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि ये किस तरह से काम करता है। और प्रोसीजर जो बड़े सालों से है लेकिन बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हो सका, वो स्टेटा प्रोसीजर है। इसमें बेसिकली इतना समझ लें कि ये अंदर जाके आप बेसिकली डिस्टल एंड ऑफ इसोफेगस के ऊपर मल्टीपल एरियाज को बर्न कर देते हैं। एंड यू एंड मी नो कि जब आप किसी एरिया को बर्न करते हैं तो वो जब हील करता है तो स्कारिंग होती है। उस स्कारिंग से डिस्टल एंड ऑफ इसोफेगस थोड़ा नैरो हो जाता है एंड यू एक्सपेक्ट कि एसिड का जो वापस आने का सिलसिला है वो उसमें कुछ ना कुछ कंट्रोल हो जाएगा। सो ये एक और ऑप्शन है, बट जनरली ये बहुत ज्यादा कोई पॉपुलर नहीं हो सके ये प्रोसीजर्स।
मोस्टली आपको पेशेंट्स अपने मेडिकेशंस पे ही नजर आएंगे एंड यू विल सी ऑन एंड ऑफ पेशेंट्स जिन्होंने फंडोप्लाइकेशन सर्जरी की तरफ भी गए हो। सो इन नटशेल जब भी आप पेशेंट ऑफ रिफ्लक्स देखेंगे तो आप इसी तरह से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को फोकस में रखेंगे, डाइटरी मैनेजमेंट करेंगे और फिर ड्रग्स को उसमें ऐड करेंगे। और जाहिर है उसमें कॉम्प्लिकेशन जिस पे अभी हम 2-3 मिनट में बात करेंगे उनको भी जाहिर आपको ज़हन में रखना पड़ेगा। और सर्जरी विल बी ऑप्शन फॉर अ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पेशेंट्स। कुछ लोग जो जाहिर है स्टिल इन सारे ट्रीटमेंट से मुतमिन नहीं है और यहाँ वो दवाइयां नहीं खाना चाहते सारी उम्र, तो वहां जरूरत पड़ेगी कि भी उनको आपको अगला ऑप्शन देना पड़ेगा। ब्रीफली कॉम्प्लिकेशंस, क्योंकि एक बीमारी है जिसने साल चलना है, जिसके कुछ ना कुछ सिम्टम्स चलते रहने हैं, जिसके साथ दवाइयों का इस्तेमाल हो रहा है, तो देयर आर कॉम्प्लिकेशंस। यहाँ आप देख सकते हैं ये बेसिकली बेरियम स्वॉलो स्टडी है, तो आप देख सकते हैं दरमियान में एक एरिया नैरो हो गया, बेसिकली स्ट्रक्चर बन गया। एंड दिस मच हायर मिड इसोफेगस में भी स्ट्रक्चर हमने देखे हैं इन पेशेंट्स ऑफ रिफ्लक्स डिजीज को। फॉर्चुनेटली इसमें सोल्यूशन बड़ा आसान है, एंडोस्कोपी करके इसमें बूजीज के साथ डायलेट किया जा सकता है। बट ऑब्वियसली जब एक दफा एक पेशेंट कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर लेता है तो फिर उसको आपको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट पे रखना पड़ता है। दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर अपीयर्स ऑन एंडोस्कोपी। बाज़ दफा अल्सर्स इस तरह के डीप सीटेड अल्सर बन जाते हैं और उसमें जिस तरह से यहाँ हम देख सकते हैं कि बेरियम में एक्यूमुलेट हुआ हुआ है डिस्टल एंड ऑफ इसोफेगस में, इस तरह की कॉम्प्लिकेशन, और इसमें बड़ी सिवियर चेस्ट पेन डेवलप होती है पेशेंट को। दिस इज अनदर कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू इरोसिव रिफ्लक्स डिजीज। यहाँ आप देख सकते हैं कि डिस्टल एंड में स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये डाई होल्ड अप कर गई है और दिस लॉन्ग स्ट्रक्चर इन द डिस्टल एंड ऑफ इसोफेगस, क्योंकि ये स्मूथ टेपरिंग है और जनरली स्मूथ टेपरिंग मींस के बेनाइन स्ट्रक्चर है, बट ऑब्वियसली इसमें आप एंडोस्कोपी और डायलिटेशन की तरफ जाएंगे इस पेशेंट के अंदर। एंड दैट्स अ ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग रिफ्लक्स डिजीज, डेवलपिंग मैलिग्नेंसी इन द डिस्टल एंड ऑफ इसोफेगस। ये वो चीज है जिसकी वजह से हमने शुरू में डिस्कस किया था कि अगर किसी पेशेंट को 5 साल हो गए हैं रिफ्लक्स डिजीज के साथ तो उसकी एक एंडोस्कोपी हो जानी चाहिए। वजह यह है कि ये एडिनोकार्सिनोमा एक दिन में या 1 साल में या 2-3 सालों में डेवलप नहीं होता, इट गोज थ्रू अ स्टेज, और उसमें दरमियान में बैरेट्स मेटाप्लेजिया वो चीज है जो बेसिकली समटाइम्स ओकेजनली इन 1 to 2% केसेस में मैलिग्नेंसी तक पहुंच सकती है। अच्छा, क्या चीज है बैरेट्स? लॉन्ग स्टैंडिंग रिफ्लक्स डिजीज, कंटिन्यूस इंजरी, और उसके नतीजे में डिस्टल एंड ऑफ इसोफेगस का जो म्यूकोजा नॉर्मली स्क्वेमस होता है वो कलमनर में चेंज हो जाता है। और वो कलमनर वो वाला नहीं है जो स्टमक का है, बल्कि ये इंटेस्टाइनल कलमनर एपिथेलियम है जिसमें गॉबलेट सेल भी मौजूद है। सो आप जनरली इसके बारे में टर्म पढ़ेंगे कि इट्स एन इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया ऑफ डिस्टल एंड ऑफ इसोफेगस। सो बेसिकली इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ कलमनर एपिथेलियम, लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है जो देखने वाली है वो गॉबलेट सेल जो इसमें आपको यहाँ दरमियान में नजर आ रहे हैं। That confirms the presence of Barrett's esophagus. Long-standing GERD की complication है और basically it's considered as pre-malignant disease. So जब भी Barrett's का शक पड़ता है एंडोस्कोपी के ऊपर तो फिर हम बायोप्सीज ले लेते हैं, और बायोप्सीज में ये कंफर्म हो जाए तो उसमें अगला चीज देखने वाली ये होती है कि उसके अंदर कोई डिस्प्लेजिया है कि नहीं। यू एंड मी नो कि जब वो जाहिर है मेटाप्लेजिया से आगे जब सेल की शक्लें खराब होना शुरू होती हैं और वो उस तरफ जाते हैं तो इट्स अ डिस्प्लेजिया व्हिच इज अ प्री-मैलिग्नेंट सिचुएशन। So that is why we need an endoscopic surveillance. 5 साल से ज्यादा हो गए हैं तो फिर आप एक एंडोस्कोपी करेंगे। अगर बैरेट्स उसमें मिल जाता है बट कोई डिस्प्लेजिया नहीं है तो फिर आप उसमें फ्रीक्वेंट इंटरवल्स के साथ एंडोस्कोपी एटलीस्ट 3 to 5 ईयरली जो करके बायोप्सीज लेते रहेंगे। सर्वेलेंस एंडोस्कोपी अगर डिस्प्लेजिया नहीं भी है तो आपको एवरी 2 to 3 ईयर करनी है। और अगर लो ग्रेड डिस्प्लेजिया मिल जाए तो ऑब्वियसली यहाँ तो आप सर्वेलेंस का इंटरवल कम कर दें, अब एवरी 6 month एवरी 3 month करें, या आप चूंकि एंडोस्कोपिकली इन चीजों को ट्रीट किया जा सकता है तो इसलिए सम टाइम पीपल गो हेड विद द रिसेक्शन ऑफ दीज एरियाज इवन इन पेशेंट्स विद लो ग्रेड डिस्प्लेजिया। ठीक है, क्या ऑप्शंस हैं? आई थिंक उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट आप इतना समझ सकते हैं कि इस तरह का जो डिस्प्लेजिया है उसको आप एंडोस्कोपिकली भी रिसेक्ट किया जा सकता है। वो EMR इज बेसिकली एंडोस्कोपिक म्यूकोजल रिसेक्शन, जिसमें वो एरिया सारा जो बेसिकली डिस्प्लास्टिक है वो उसको जिस तरह से यू कैन सी कि ये एबनॉर्मल एरिया डिस्टल एंड ऑफ इसोफेगस में जब आपने रिसेक्ट कर दिया तो पीछे फिर ये बेस आ गई। अनदर ट्रीटमेंट फॉर दिस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन, इसमें आप ये समझ सकते हैं कि उसको बेसिकली बर्न कर देते हैं उस पर्टिकुलर एरिया को जो डिस्प्लास्टिक है, लेकिन आपको उसमें बाद में एंडोस्कोपी करके नजर रखनी पड़ेगी। सो इट वाज अ लॉन्ग टॉपिक, लेकिन what in summary what can we can say is कि ये symptomatic illness है which is produced due to reflux of the gastric content into the distal esophagus, और पेशेंट की प्रेजेंटेशन टिपिकल भी हो सकती है विद रिट्रोस्टोनल बर्निंग और रीगर्जिटेशन और वो सब कुछ, और एटिपिकल भी हो सकती है विद रिकरेंट सोर थ्रोट एंड अदर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ENT।
डायग्नोसिस क्लिनिकल है, आपको जो investigations हैं like endoscopy, that is only needed in a select group of patients. Otherwise you can make a clinical diagnosis and you can start with the treatment में most important चीज है lifestyle modification, और उसके साथ कोई ना कोई drug ऐसी आपको देनी पड़ेगी जो acid production को control में रखे. That generally is the start of the treatment. और चूंकि ये लॉन्ग टर्म डिजीज है और इसमें ये चांसेस कि ये काफी years and years पेशेंट के साथ कुछ ना कुछ सिम्टम्स रहेंगे, तो वहां आप सर्विलेंस फॉर कॉम्प्लिकेशंस भी रखते हैं, जिस तरह हमने ब्रीफली देखा कि क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और उसको किस तरह से हमने नजर में रखना है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच शाहिद. एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन. मेरे ख्याल में इससे अच्छा इसको कवर नहीं किया जा सकता था. अभी ये है कि वी हैव a small case. वो मैं चाहूंगा कि अभी एक हमारी डॉक्टर साहब है, वो she will just go through that case. आपने तकरीबन सारा कुछ बता दिया. If you could just summarize before you go on to the case. There was a question in the chat about relationship of PPI with pneumonia. इस पे आप थोड़ा सा deliberate करें तो उसके बाद we'll go to the case. जी, that's a very good question. Basically, जो natural barriers हैं to passage of infection into the body, उसमें से एक important barrier जो है वो gastric acid भी है. So generally, चूंकि stomach की pH is around 1.5 to 2.5, तो अगर मैं जो चीजें dietary intake में ले रहा हूँ उसमें अगर कोई ऐसी infection है भी है, ऐसा कोई organism है भी है, तो वो survive नहीं कर सकता उस acid के अंदर. जब मैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स यूज करता हूं तो फिर स्टमक की पीएच जो है वो अराउंड 5-6 रहना शुरू हो जाती है, वो बैरियर खत्म हो जाता है. दैट इज व्हाई कि भी पेशेंट्स में पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग इन्फेक्शंस, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल इन्फेक्शंस और ये वाली ज्यादा होना शुरू हो जाती है. फिर एक और चीज आपने देखी होगी, जनरली जो पेशेंट लो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के साथ एडमिट होते हैं, वहां प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का यूज इन आईसीयू सेटिंग वो मोर्टेलिटी को बढ़ाता है. उसकी भी वजह यही है कि कुछ ना कुछ रिफ्लक्स हो रहा होता है, कुछ ना कुछ कंटेंट्स जो हैं वो ट्रिकल डाउन हो रहे होते हैं पेशेंट्स के इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, और चूंकि उधर एसिड मौजूद नहीं है तो उसमें चांसेस ऑफ पासिंग दोज इन्फेक्शंस इनटू द लंग्स बढ़ जाती है. सो चांसेस, खासतौर पे ये ओल्ड एज के इश्यूज हैं, खासतौर पे ये आईसीयू सेटिंग में दाखिल हुए पेशेंट्स के इशू हैं, कि वहां अगर आप पीपीआई यूज कर रहे हैं तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस बढ़ जाता है. थैंक यू. We just quickly go through this case. It will not take more than 5 minutes. Who is presenting? Uzair, इसको थोड़ा सा enlarge भी कर दें, इसका font. Dr. Raj will be presenting. Okay. जी, Dr. Raj, please. We can't hear you. आप म्यूटेड तो नहीं है? ठीक है. अस्सलाम वालेकुम. Can you hear me now? Yes, we can hear you now. Please go ahead. I'm going to start the case now. It's a 30-year-old male smoker, clothes merchant, presented in OPD with complaint of intermittent heartburn and bitter taste in mouth since 5 years. Symptoms mostly occur after dining late and no other comorbidities. He has a history of laparoscopic cholecystectomy 5 years back. Weight was 84 kg and height 156 centimeter. BMI was calculated to be 34.51 and BP is 120/80. On examination, abdomen is soft, non-tender, chest bilaterally clear. Family history was not significant. Investigation parameters, can you scroll it down a bit, Uzair bhai? Can you scroll the slide down a bit? Uzair, can you scroll down? Sir, I am scrolling it down. Okay. I just studied this case. Shahid, the investigations are normal. And ultrasound was normal. Investigation इसमें से blood complete है, LFTs हैं, they were normal. Sugar भी normal थी और एक इसका ultrasound हुआ था वो भी normal है. वो भी normal.
जी, और जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली ये थे कि हाउ आर वी गोइंग टू प्रोसीड फर्दर, डज ही नीड एनी अदर इन्वेस्टिगेशन, नंबर 1, नंबर 2, आप ट्रीटमेंट कौन सा देना चाहेंगे और कितनी देर के लिए देना चाहेंगे इस केस को? जी शाहिद प्लीज। जी, एक तो 30 इयर्स ओल्ड पेशेंट है और स्मोकर है और उसके सिम्टम्स बड़े टिपिकल हैं, रिट्रोस्टर्नल, उसको हार्ट बर्न है और बिटर टेस्ट इन माउथ है और फॉर लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री है फॉर 5 इयर्स और रात के खाने के बाद ज्यादा होती है। सो ये तो एक टिपिकल क्लासिकल पेशेंट है फॉर रिफ्लक्स डिजीज। इसमें जो उसके रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें एक तो स्मोकिंग है, सेकेंडली वी कैन सी कि उसका बॉडी मास इंडेक्स बहुत ज्यादा है, ओबेसिटी है, जो ये दो चीजें नजर आ रही हैं जिसमें कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। अब इस सिचुएशन में पहली चीज मैं देखूंगा कि सिम्टम्स टिपिकल हैं कि एटिपिकल हैं। सो टिपिकल सिम्टम्स है। द नेक्स्ट थिंग इज कि कोई अलार्म सिम्टम तो नहीं है। अब अलार्म सिम्टम हमें इसमें कोई डिस्फेजिया की, कोई हेमेटोमेसिस मलीना की, वेट लॉस की, इस तरह की कोई हिस्ट्री नजर नहीं आ रही। द ओनली थिंग इसके सिम्टम्स उसके काफी पुराने हैं, फॉर 5 इयर्स से चले आ रहे हैं। डायग्नोसिस के लिए प्रॉबेबली मुझे कोई और इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड एंडोस्कोपी टू डायग्नोस कि ये रिफ्लक्स डिजीज है। अलबत्ता वो जो हमने बात डिस्कस की थी कि अगर टाइम बहुत ज्यादा हो चुका हुआ है, 5 ईयर से सिम्टम चल रहे हैं, तो थोड़ा रिस्क बैरेट्स का आना शुरू हो जाता है इसके दरमियान में। तो अगर मैंने एंडोस्कोपी की भी तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में जरूर करूंगा कि लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री है, सो आई शुड गो हेड एंड डू एन एंडोस्कोपी टू सी कि कोई बैरेट्स की चेंजेस हैं कि नहीं है तो देन आई एम वेरी कंफर्टेबल और मैं उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकता हूँ। दूसरी बात, ट्रीटमेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यहाँ बहुत ज्यादा मैटर करेंगी, बिकॉज स्मोकिंग हमें स्टॉप करवानी पड़ेगी, उसको वेट रिडक्शन की तरफ रेगुलर वॉक वो करना पड़ेगा। फिर हिस्ट्री से पता लग रहा है कि उसको लेट डाइनिंग की हैबिट है, विच मोस्ट ऑफ अस हैज बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल इस किस्म का हो गया हुआ है। बट वी डू नो के लेट डिनर और उसके बाद फॉरन लेट जाना, दैट डू एग्रीवेट्स सिम्टम्स इन दिस इन पेशेंट्स। अच्छा, जिन पेशेंट्स के अंदर आपको इस तरह की चीजें नजर आ जाती हैं, वहां आप थोड़े से ज्यादा ट्रीटमेंट के आउटकम के हवाले से बड़े होपफुल हो जाते हैं, बिकॉज आपको पता होता है कि देयर आर मल्टीपल प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स, और जब मैं इनको एड्रेस करूंगा और पेशेंट इज कन्विंस्ड इनफ कि वो करे इनको फॉलो, तो उसको सिम्टोमेटिक इंप्रूवमेंट होने के ज्यादा चांसेस है। सो इस पेशेंट में मेरा फर्स्ट स्टेप तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, बट ऑब्वियसली नॉट टू से कि सिर्फ इस पे ही मैं जाने दूंगा, बिकॉज अब उसको फॉरेन रिलीफ भी चाहिए, उसका वेट रिडक्शन और ये चीजें दिनों में तो नहीं होगी। सो इसलिए मैं आई विल स्टार्ट विद द प्रोटॉन पंप इनहिबिटर और लोएस्ट पॉसिबल डोज में और अर्ली मॉर्निंग। अब वो खाने से पहले बाद वो तो डिपेंड करता है कि मैं कौन से वाला इस्तेमाल करूं। सो इसके साथ मैं उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करूंगा एंड आई विल सी द रिस्पॉन्स ऑफ द पेशेंट। अगर मेरे पास वो पेशेंट, आई विल आस्क हिम टू फॉलो अप विद मी एटलीस्ट आफ्टर 2 वीक्स जस्ट टू हैव एन आइडिया कि उसके सिम्टम रिलीफ हुआ कि नहीं। If he is relieved, I will continue with the same drug and will at least continue it for 8 weeks. अब 8 वीक्स के बाद जो मेरी दोबारा एवेल्युएशन है वो इस पे डिपेंड करती है कि मेरे जो बाकी इंस्ट्रक्शंस थी वो कितनी फॉलो हो सकी हैं, लाइफस्टाइल चेंज हुआ कि नहीं, खाने के टाइम ठीक हुआ कि नहीं, वेट कुछ रिड्यूस उसने 2 महीनों में कुछ नजर आ रहा है कि ही इज कन्विंस्ड इनफ टू रिड्यूस द वेट, और स्मोकिंग बंद की कि नहीं। सो अगर इज अ कंप्लायंट पेशेंट और आपको नजर आ रहा है कि पेशेंट इज कन्विंस्ड एंड ही वांट्स टू बी ऑफ ट्रीटमेंट और वो और ये चीजें वो कर रहा है, तो देन आई मे स्टार्ट टेपरिंग द डोज। मैं जनरली पेशेंट्स को एकदम से पीपीआई बंद नहीं करता, बिकॉज वो सिम्टम का रिलैप्स का इशू बहुत ज्यादा है। सो जनरली मेरी टेंडेंसी होती है कि मैं फिर 1 दिन का वक्फा, फिर 2 दिन का वक्फा, वीकली करके उसको रिड्यूस करना शुरू कर देता हूँ। एंड अगर वो एट द एंड ऑफ 6 मंथ उसकी ये ड्रग भी बंद हो जाती है और वो बाकी सारे मैयर से वो सिम्टम फ्री है, तो दैट्स द बेस्ट आई कैन हैव। अगर उसके सिम्टम्स जहां मुझे लगेगा कि नहीं, मैंने ट्रीटमेंट उसको जो है वो अल्टरनेटिव डे से जब मैं 2 डेज डालने शुरू किए हैं तो फिर सिम्टोमेटिक हो गया, तो मैं उस मिनिमम पे रखूंगा उसको जिसपे उसका सिम्टम रिलीफ रहेगा। इशू प्रॉब्लम ये है कि यहाँ ये एक्सपेक्टेशन कि ये पेशेंट ये ट्रीटमेंट साल चलेगी, ये पॉसिबिलिटी है, बिकॉज 5 साल से तो सिम्टोमेटिक है। सो यहाँ मुझे उसके साइड इफेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए उसकी डोज को मिनिमम पे रखना है, एंड एवरी टाइम आई एम गोइंग टू रीस्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ वेट लॉस, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टॉपिंग स्मोकिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ इम्प्रूविंग हिज डाइटरी हैबिट्स. So I think this is how I'm going to handle this patient. Thank you. Thank you, Shahid. Uzair, if you can stop share. Shahid, there's a question in the chat. Do we need using PPIs in chronic cases as mentioned, because PPI are pro drug and they need more acid for better response? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? Obviously, मेरा टारगेट इस सारे ट्रीटमेंट में तो ये है बेस्ट रिस्पॉन्स विद द पेशेंट विद मिनिमम पॉसिबल साइड इफेक्ट्स। अब ये जो नई मेडिसिन हैं इनका एविडेंस कितना स्ट्रॉन्ग है ये डिबेटेबल है। अभी जाहिर है न्यू मेडिसिन हैं, अभी मार्केट में लॉन्च हुई हैं,
लॉन्ग टर्म यूज से क्या इनके साइड इफेक्ट्स निकलते हैं? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स तो मैं और आप पिछले 20-25 सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। वी आर अवेयर कि बहुत सारी चीजें थ्योरेटिकल थी, उसमें जो कार्सिनॉइड और इस तरह के रिस्क थे वो प्रैक्टिकली हमने कभी नहीं देखे। ये ड्रग्स लॉन्ग टर्म में कैसे बिहेव करती हैं, दिस स्टिल रिमेन्स टू बी सीन। सो अभी भी आप देखेंगे कि हम सब ज्यादातर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के साथ ही चलते हैं इन पेशेंट्स में, लॉन्ग टर्म चलते हैं, बट उसमें लॉन्ग टर्म यूज के साइड इफेक्ट्स को ज़हन में रखते हैं। अभी जजमेंट इस चीज पे देना कि पी कैब और ये जो बाकी ड्रग्स हैं ये क्रॉनिक लॉन्ग टर्म यूज में पीपीआई से बेहतर साबित होती हैं कि नहीं, इट्स टू अर्ली टू से दैट। बट अब देयर आर गुड इनफ स्टडीज टू शो कि ये ड्रग्स इफेक्टिव हैं, और इसमें ये वाले जो एलिमेंट्स हैं कि उनकी एफिकेसी बेहतर है, जल्दी काम पकड़ लेती हैं, इनको एसिडिक एनवायरनमेंट नहीं चाहिए होता, खाने में आगे पीछे खाने से कोई इशू नहीं होता, ये ऑब्वियसली इनके एज है। और मे बी आफ्टर फ्यू ईयर्स वी विल बी एबल टू से कि लॉन्ग टर्म यूज के लिए ये ड्रग्स बेटर हैं as compared to the proton pump inhibitors. Not right now because of time बहुत कम। जी शायद एक और सवाल है कि व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोकाइनेटिक्स, एंटासिड्स एंड प्रोकाइनेटिक्स? आपने प्रोकाइनेटिक्स का जिक्र नहीं किया यहाँ पे ज्यादा। प्रोकाइनेटिक ड्रग्स बेसिकली आर मेंट फॉर कि स्टमक की एम्पटिंग में हेल्प करते हैं। सो अगर मैं थ्योरेटिकली देखूं तो वन ऑफ द फैक्टर व्हिच कैन हेल्प मी इन मैनेजिंग पेशेंट्स ऑफ रिफ्लक्स डिजीज इज कि मैं गैस्ट्रिक एम्पटिंग को बढ़ा दूं। अब प्रॉब्लम उसमें सिर्फ यह है कि देयर इज नॉट अ गुड इनफ एविडेंस। लॉट ऑफ स्टडीज हैं, लॉट ऑफ डाटा है जिसमें गर्ड में इन ड्रग्स को यूज करके देखा गया है, बट देयर इज नो डिफरेंस इन देयर आउटकम। गर्ड में इसका इस्तेमाल वहां बनता है जहां ओवरलैप विद फंक्शनल बाउल डिसऑर्डर्स है। यू विल सी पेशेंट्स ऑफ गर्ड जिनको साथ डिस्पेप्सिया का भी प्रॉब्लम है, वो आपको ये बताएंगे कि सीने में जलन भी है और उसके साथ अब्डोमेन भी डिस्टेंड रहता है, खाने के बाद ब्लोटिंग बहुत ज्यादा फील होती है। वहां पे इनका रोल है, यू यूज देम बट बी वेरी केयरफुल बिकॉज इनके साइड इफेक्ट्स के इश्यूज भी हैं। सो वहां भी आपको देखना पड़ेगा कि आप लीवोसल्फराइड यूज कर सकते हैं या आइटोपराइड बेहतर है कि एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स नहीं है। वहां भी आपको देखना पड़ेगा कि अच्छा पैरिडॉन अगर मैंने डोमपेरिडॉन देनी है तो उसके साथ क्या पोटेंशियल इश्यूज हैं, फीमेल्स में यूज करनी है तो क्या इश्यूज हैं। सो एज सच प्योरली रिफ्लक्स डिजीज में अभी तक कोई एविडेंस नहीं है कि प्रोकाइनेटिक्स हेल्प करते हैं। या आप वहां यूज करते हैं जहां आपको ओवरलैपिंग फंक्शनल डिसऑर्डर लाइक डिस्पेप्सिया मिलता है इन अ पेशेंट विद गर्ड। जी थैंक यू। देयर इज अ रेज्ड हैंड, डॉक्टर सुहेल अहमद अब्बासी, इफ यू ही कैन बी अनम्यूटेड। जी Uzair, can you unmute him and he can ask his question? Dr. Sir, Suhail I have Abbasi. requested him to unmute himself. Okay. There is another question, Shahid. In GERD, is there cardiac sphincter compromise? And if it is, then what will be the treatment? जी हाँ बिल्कुल, वन ऑफ द रीजन हमने बात की थी कि 3 बड़े आइडेंटिफाई हुए हैं कल्प्रिट्स जो रिफ्लक्स में अमूमन कंट्रीब्यूट करते हैं। आइदर इट्स इनकॉम्पिटेंट लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर और इट इज हाइटस हर्निया, स्टमक के ऊपर शिफ्ट हो गया है, और तीसरा वो था कि भाई नॉर्मल फिजियोलॉजिकल ट्रांजिएंट रिलैक्सेशन ज्यादा हो जाती है। सो ये चीज के अंडरलाइन कॉज क्या है वो जनरली फिर आपको एंडोस्कोपी पे पता लग जाती है। व्हेन यू गो देयर यू सी कि स्फिंक्टर जो है बेसिकली ओपनड अप है एंड देयर इज नो नॉर्मली जो उसको क्लोज्ड होना चाहिए विदाउट, अगर फूड नहीं गुजरी तो उसको बंद रहना चाहिए। सो दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। फिलहाल ड्रग कोई ऐसी नहीं है जिसको मैं कहूँ कि हम यूज करेंगे तो उसके स्फिंक्टर की टोन वापस आ जाएगी। बेसिकली जो हमने बात की है सर्जरी की, फंडोप्लाइकेशन की, वो इसी डिफेक्ट को कवर करने के लिए, क्योंकि वो जो सर्कुलर मसल है वो तो इनकम्पिटेंट हो गया। व्हाट दे डू इज के फंडस को रैप कर देते हैं इसोफेगस के इर्द गिर्द एंड दे क्रिएट एन आर्टिफिशियल स्फिंक्टर आउट देयर। सो उससे ये प्रॉब्लम जो है इसको आप एड्रेस कर सकते हैं कि अब एक नया स्फिंक्टर बेसिकली आपने डेवलप कर दिया जिसकी वजह से एसिड वापस नहीं आ सकेगा। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऐसी कोई नहीं है जो इसमें हेल्प कर सकेगी। फिर हमने बात की कि स्मोकिंग अमूमन स्फिंक्टर की टोन को खत्म करती है, सो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में भी एक चीज है जो इसमें हेल्प कर सकती है। ड्रग वाइज कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इफ यू वांट टू रिस्टोर द स्फिंक्टर फंक्शन तो फिर आपको सर्जरी की तरफ ही जाना पड़ेगा। Thank you very much. I think we are now coming to the end of this session. Okay.
Well, thank you very much. I'm extremely grateful. Shahid, आपने मैं जानता हूँ बड़े short notice के ऊपर मैंने आपको तंग किया and you accepted and और ये आप ज़हन में रखें कि we will keep inviting you to this session. It has been a great talk and we may have a couple of other lined up in 2 to 3 weeks time. I would request, I think Bilal Noori is here. Bilal, you want to say a few words? Yes, Bilal, please speak now. We can't hear you. Hello. Yes, we can hear you now. No, we can't hear you. आपकी आवाज थोड़ी देर के लिए आई थी. Yes, sir. Now we can hear you. Okay. Thanks to all the Parsa Echo team, especially Dr. Asad Ali Chaudhary, Dr. Shahid Sarwar, and all the team members who have actually made this happen, and we are able to conduct this session today. And all the participants who have joined us for this capacity building session. This is again a very good and interactive session, very learned session rather, where everyone has learned the diagnosis, treatment options, and other alternatives for treatment and management of the GERD. So again, I would like to thank you, Dr. Shahid Sarwar, for a very nice talk. And inshallah, we will move forward with more and different topic in the same sessions. So again, on the behalf of GERD Pharma and team, I would like to thank you for making this happen and getting a very good and successful session. Thank you so much, sir. Thank you. I will now go over to our Director of Operation, Mrs. Kiran. Kiran, please. Okay, thank you, Dr. Asad. As Dr. Asad mentioned before, we do encourage cases from the spokes and would like the spokes to present their own cases. Please contact our team if you have any relevant case for the upcoming session. We are grateful and thankful to the spokes and the expert and GETS Pharma for unrestricted educational grant. Special thanks there to Khalid Mahmood Sahab and of course our Parsa Echo team. We hope this collaboration with Rising Foundation will produce more informative sessions for you in the future. We will sign off for today. Allah Hafiz. Uzair, you can please call off the meeting. Sure, ma'am. I'm going to call off this meeting. Thank you.